Hello friends, we are moving to the unit number 9 of English literature, The Big Silver Rupee. It's a very interesting story and I hope and trust you would like it. But let's see first the meaning of the words. What is Anna? Anna, a coin formerly used in India. 16 anna made a rupee in the old days and 12 पैसे made an anna. तो मेरा आना है 16 आना मिल के एक रुपया बनता है. तो ये पहले आना, जैसे आज हम कॉइन यूज़ करें रुपीज़, 1 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ कॉइन्स, वैसे पहले आना हुआ करते थे. सो दिस इज़ आना. देन अलमीरा, कपबोर्ड. अलमीरा का मतलब होता है कपबोर्ड. देन वाइट साहिब्स, तो ये उस समय की बात है जब ब्रिटिशर हम पे राज कर रहे थे. अ वे ऑफ रिफरिंग टू ब्रिटिश जेंटलमैन. क्लचिंग, क्लचिंग मतलब पकड़ना. होल्डिंग समथिंग फॉर्मली और टाइटली. किसी का कोई चीज़ है, जैसे किसी को सिक्के को टाइट से पकड़ना. हैस्टिली, हैस्टिली मतलब हरीडली, उतावड़ में, जैसे कहते हैं ना, दैट इज हैस्टिली. गैदर्ड माई करेज, गैदर्ड माई करेज मतलब हिम्मत लाना. प्रिपेयर टू मेक अ ग्रेट एफर्ट टू बी स्ट्रॉन्ग और ब्रेव, हिम्मत के साथ. आउट स्मार्ट, टू ट्रिक समवन, आउट स्मार्ट मतलब ट्रिक करना किसी के साथ. क्राफ्टी, गुड एट गेटिंग वॉट यू वॉन्ट बाय ट्रिकिंग अदर्स, दैट इज क्राफ्टी. थम्ड, हिट हार्ड. थम्ड का मतलब होता है हिट हार्ड. देन मेड माई माउथ वाटर, मुंह में पानी आ जाना. हियर मेड मी want to eat sweets immediately. Syrup, or sweet liquid made from sugar and water. Syrup जो हम गोले में बर्फ में लगाते हैं, वो जब हम खान जाते हैं तब सिरप एक प्रकार का. और इसके जो लेखक है गंगाधर गडगिल, उसने अपना एक्सपीरियंस कहो तो वो लिखा है. Gangadhar Gopal Gadgil was a Marathi writer. He worked as a professor of economics in Sydenham College and other colleges in Mumbai. He was also associated with various literary institutions of India and serves as a vice president of Sahitya Akademi from 1988 to 1993. He is known for his deceptively simple stories that often contain social commitment. Apart from the fiction, he was also known for writing children's stories, travelogues, and one-act plays. He is well known, Gangadhar, and he has written, the narrator is Gangadhar here. So now let's see from the beginning. We can see on the picture, these are the coins. We can see the annas were there. They were used in order to buy the things. Let's see. Gangadhar's father gives him a shining silver rupee. गंगाधर के पिताजी, जो नरेटर है उसके पिताजी, उसको एक रुपी देते. He is unable to decide what to do with it, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी रकम हुआ करती थी पहले. तो वो कंफ्यूज था कि इसके साथ मैं क्या करूं. He is unable to decide what to do with it. उसका क्या खरीदो, क्योंकि इतनी बड़ी रकम हुआ करती थी. His mother asked him to save the money for later. और जो मम्मी, हमेशा सबकी मम्मी ऐसी होती हैं, वो बोलती है कि इसे संभाल के रखो, आपके लिए ये चीज़ ले दूंगी, वो ले दूंगी. Find out how Gangadhar finally uses this silver rupee. और अंत में जो गंगाधर है वो कैसे इस रुपये का यूज़ करता.
Gangadhar father has given him a coin, and now what happens? Let's see. Because problem never ends everywhere. Rupee has got, he has got the rupees, yet the problems are there. Here's, here is something for you, my son, said my father. I put out my hand. मेरे पिताजी ने कहा, बेटा ये लो कुछ आपके लिए है. मैंने हाथ रखा. That something was heavy in the palm of my hand. तो मेरी हथेली में, जिसे ये palm कहते हैं, उसमें थोड़ा हैवी कुछ मुझे लगा. I slowly opened my palm and could not believe my eyes. क्योंकि 1 रुपया तो बहुत हुआ करता था पहले, तो मैं मान नहीं सका. ओह, 1 रुपया मुझे दिया. I slowly opened my palm and could not believe my eyes. It was one big shining silver rupee. पहले सिल्वर के रुपीज हुआ करते. ओह, 1 रुपया. In those days when my father earned 20 rupees a month, याद रखना, मंथ में 20 रुपीज इतने कमाते थे. तो एक दिन में वो 1 रुपया नहीं कमाते थे, और 1 पूरा रुपया उसको दे दिया. अगर आपके पिताजी की 10 लाख इनकम है तो एक दिन में कितने होते हैं, उतने उसने उसको दे दिए. सो I slowly opened my palm and could not believe my eyes. It was one big shining silver rupee. In those days, when my father earned 20 rupees a month, parents did not believe in spoiling their children by giving them pocket money. और उस समय इतना कमाते नहीं थे, और माँ बाप अपने बच्चों को बिगाड़ना नहीं चाहते थे ऐसे पैसे ज़्यादा दे के. आज भी हम कहते हैं कि हम उसे बिगाड़ रहे हैं, ज़्यादा पैसे दे रहे हो, लेकिन क्या वो पता नहीं. Guy also used to spend a lot of rupees behind my daughter, so I can't say. My father was a little different. He used to give me an आना. मेरे पिताजी कुछ अलग थे, और मुझे वो 1 आना देते थे एवरी डे टू बाई स्वीट्स ड्यूरिंग लंच ब्रेक एट स्कूल. स्कूल पे जब लंच ब्रेक होता था तब 1 आना का 16 आना मिल के 1 रुपया बनता है. 1 आना मुझे देते थे. हम कहते हैं ना 4 आना, 8 आना, 12 आना, 16 आना. तो 4 आना मतलब 25 पैसा, 8 आना मतलब 50 पैसे, 12 आना मतलब 75 पैसे, और 16 आना मतलब 1 रुपया 100 पैसे. So my father was a little different. He used to give me an anna every day to buy sweets during lunch break at school, but even he had never given me a whole rupee. लेकिन आज तक मुझे कभी उसने पूरा रुपया दिया नहीं. आज दिया. A rupee was big money in those days. अगर आज भिखारी को आज आप रुपया दोगे तो भी वो नहीं लेंगे, लेकिन उन दिनों में रुपया एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी. When my mother went shopping with a rupee tucked in the fold of a sari, जो साड़ी में पहले ही साड़ी में बांध के जाते थे ताकि पैसे न गिर जाए. अगर उसमें बांध के अगर वो खरीदने जाती 1 रुपया लेके, अगर ग्रोसरी खरीदने जाती तो भी उसमें से पैसे बचते. She could buy a bag of groceries. उसमें से एक ग्रोसरी का एक बैग भर के आ जाती. एंड सम स्वीट्स फॉर अस, और हमारे लिए मिठाई भी 1 रुपये में आ जाती है. एंड स्टिल हैव अ फ्यू पैसे लेफ्ट, और फिर भी कुछ पैसे बचते थे. ये ज़माना कैसा होगा देखो, 1 रुपये में खरीदी हो जाती है, स्वीट्स हो जाती, ग्रोसरी ले लेते हैं, फिर भी पैसे बचते हैं. नो वंडर आई वॉज सो सरप्राइज. रियली मैं सरप्राइज था, इतने पैसे मुझे दे दिए. फादर यू हैव गिवन मी अ होल रुपी, आई सेड. क्योंकि वो मानने के लिए तैयार, तो वो पूछ रहा है, पिताजी आपने मुझे पूरा रुपया दे दिया. इज दैट सो, ही सेड एंड लाफ्ड आउट लाउड. हाँ बेटा, आई न्यू देन दैट माई फादर हैड रियली मीन टू गिव मी अ रुपी. बाद में मुझे समझ में आया, मानने में आया कि मुझे पूरा रुपया दे दिया है. जो मेरी माँ है उसमें से बहुत सारी खरीद कर सकते हो, फिर भी पूरी खरीदी करने के बाद भी पैसे बचेंगे, इतने पैसे मेरे पिताजी ने आज दिए हैं. तो मैंने कंफर्म कर लिया, आपने मुझे दिए हैं ना.
आई वॉज सो हैप्पी, आई रैन ऑल ओवर हाउस, मैं इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, मैं दौड़ने लगा घर में, शाउटिंग इंजॉय, या यस, मजा आ गया, मजा आ गया, ऐसा मैं चिल्लाने लगा. हाउएवर दैट वाज अ ग्रेट मिस्टेक, हाउएवर दैट वाज अ ग्रेट मिस्टेक, लेकिन वो मेरी गलती थी, क्योंकि मम्मी को पता चल गया. मम्मी को पता नहीं चला होता तो इजी हो जाता. सुन मदर गॉट टू नो दैट फादर हैड गिवन मी अ रूपी, और मेरी मम्मी को पता चल गया. और मम्मी को पता चल जाता है तो मम्मी है वो कभी ये अलाउ नहीं करेगी कि तुम इतने सारे पैसे खर्च कर दो. गिव इट टू मी, तुरंत ही मम्मी ने बोला. टिपिकल मम्मी, सबकी मम्मी होती है वैसे, चाहे पहले के ज़माने की हो, आज के ज़माने की हो. गिव इट टू मी, आई विल कीप इट सेफ इन द स्टील अलमीरा, जो अलमीरा है उसमें मैं संभाल के आपके लिए रख दूंगा. सी सेड, हर एक माँ ऐसा कहते, बेटा मैं बाद में तुम्हें बर्थडे पे ये खरीद दूंगी, वहाँ पे उसकी शादी है तब ये ले दूंगी. आई न्यू दैट वेन एवर आई गेव माई मनी टू माई मदर टू कीप फॉर मी, लेकिन मुझे पता है जब मैंने मेरी माँ को पैसे दिए वो वापस कभी नहीं आए, वो गायब हो गए, डिसअपियर हो गए. टू माई मम्मी मदर टू कीप फॉर मी, आई नेवर सॉ इट अगेन, बाद में मैंने कभी उसको देखे नहीं, वो डिसअपियर हो गए हैं. सो आई शुक माई हैंड, मैंने बोला नहीं भाई नहीं हो, मुझे नहीं करना है ऐसा. आई शुक माई हैंड, बहुत बार गायब हो गए मेरे पैसे. नो आई वॉन्ट, नो मैं नहीं दूंगा. आई विल नॉट, यू विल नॉट गिव इट बैक टू मी एंड व्हेन आई आस्क फॉर इट, और मुझे पता है मैं जब मांगूंगा तब तुम मुझे ये पैसे देने वाली नहीं है, मेरा रुपये देने वाली नहीं है. मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, आपको जो चाहिए आप करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए. योर मनी इज ऑल दैट सिटिंग सेफली इन माई बॉक्स, व्हेन यू हैव सेव्ड इनफ आई विल बाय यू अ गोल्ड रिंग. सी रिप्लाइड, बेटा आपने जितने भी पैसे दिए ना गायब नहीं हुए, वो मैंने आपके लिए रखे, और जब आप मतलब मैं रिंग खरीद सकूँ इतने हो जाएंगे तब मैं तुम्हारे लिए रिंग खरीद दूंगी, तुम चिंता मत करो. योर मनी इज ऑल दैट सिटिंग सेफली इन माई बॉक्स, व्हेन यू हैव सेव्ड इनफ आई विल बाय अ गोल्ड रिंग. सी रिप्लाइड, मैं आपके लिए गोल्ड रिंग ले दूंगी, लेकिन अब मतलब इतने पूरे नहीं हुए पैसे के जिससे आपकी रिंग खरीद सकूं. मतलब मामू बना रही मम्मी, जैसे हर एक की मम्मी बनाती है वैसे. आई डिड वॉन्ट टू वेयर अ गोल्ड रिंग ऑन माई फिंगर ड्यूरिंग वेडिंग्स, और मुझे भी अच्छा लगता था कि किसी की वेडिंग से तो मैं रिंग पहनूंगा. बट आई वॉन्टेड टू होल्ड ऑन टू माई रूपी टू, लेकिन मैं मेरे रुपये को भी बचाना चाहता था. हाँ, किसी की शादी है तो मैं रिंग पहनना चाहता हूँ, लेकिन आज तो मैं रुपये देने के लिए तैयार नहीं हूँ. I don't want gold ring. So I did want to wear a gold ring on my finger during the wedding, but I wanted to hold on to my rupee too. So I pushed away her hand and said, इसलिए मैंने हाथ उसका, नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे रिंग बिंग कुछ नहीं लेना, मुझे मेरा रुपया चाहिए. And said I don't want a gold ring. मुझे गोल्ड रिंग चाहिए नहीं चाहिए. क्यों? कि मुझे पता है आपने बहुत बार मेरे साथ ऐसा किया है, आज नहीं आऊँगा आपके हाथ में. देन आई विल बाय यू अ सिल्वर टम्बलर, वो बात तो बेटा मैं सिल्वर टम्बलर आपको ले दूँगा. यू कैन ड्रिंक योर मिल्क फ्रॉम इट. टेम्पटेशन, लालच देती है, बाद में उसमें से तू दूध पिए, कितना अच्छा लगेगा, कितना मीठा लगेगा. बट आई डिडंट वॉन्ट टू गिव अप माई रूपी, सो आई रिप्लाई, लेकिन मैं रुपया देने के लिए तैयार नहीं था. सो आई सेड आई डोंट वॉन्ट गोल्ड एंड आई डोंट वॉन्ट सिल्वर. ना मुझे सोना चाहिए ना मुझे चांदी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा रुपया चाहिए. वॉट डू यू प्लान टू डू विथ 1 whole rupee? मदर सेड, मद्रास, लेकिन माँ तो क्या करेगा इसका 1 रुपये का? जैसे गुजराती में શું કરું ઉધારે રૂપિયા આખાનું, that is the same question is what do you plan to do with the whole rupee? Mother asked. Oh, I will buy some laddus, मैं लड्डू खरीदूंगा. eat भेलपुरी or to buy those chocolates that the white stripes eats. लड्डू खाऊंगा, भेलपुरी खाऊंगा और ऐसी चॉकलेट जो वाइट स्ट्राइप्स, मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अमीर लोग हैं ब्रिटिश वहाँ के, जो ब्रिटिशर का ज़माना था उस समय वो रूल कर रहे थे, तो मैं वो खाऊंगा वाइट स्ट्राइप्स
तो जो वाइट साहब जो खाते हैं, जो ब्रिटिशर खाते हैं, वो चॉकलेट खाऊंगा। ₹1 रुपी ऑफ बेलपुरी एंड स्वीट, ये पूरे रुपये की ₹1 की बेलपुरी और स्वीट खाएगा। इससे तो घर की पूरी ग्रोसरी आ जाती है, स्वीट्स आ जाती, सब आ जाता है। योर स्टमक विल बर्स्ट, येल माय मदर, मम्मी चिल्लाती तेरा पेट फूट जाएगा, इतना कैसे खा सकता है? योर स्टमक विल बर्स्ट, येल माय मदर, आई विल स्टिक इट टुगेदर विथ गम, आई रिप्लाइड एंड रैन आउट ऑफ द हाउस। आई विल स्टिक इट टुगेदर विथ गम एंड आई रिप्लाइड एंड रैन आउट ऑफ द हाउस। ऐसे में वहाँ से बोल के वहाँ से निकल गया। स्टिक इट टुगेदर विथ गम, गम से मैं चिपका दूंगा, और ऐसे कह के वो बाहर निकल गया। आई वेंट ओवर शाडू, शाडू है उसका फ्रेंड है, माई फ्रेंड हु लिव्ड इन द नेबरहुड, जो पड़ोस में ही रहता है, उसके पास गया। यू लुक क्वाइट प्लीज विथ योर सेल्फ, ही सेड। उसने कहा यार आज तो तू गंगाधर बहुत ही खुश लग रहा है। यू लुक्ड क्वाइट प्लीज्ड विथ योर सेल्फ, ही सेड, बट वाई आर यू क्लचिंग योर पॉकेट? इतना खुश रहे लेकिन पॉकेट ऐसे पकड़ के रखा है, तूने ये पॉकेट क्यों पकड़ के खड़ा है? साधु ने पूछा। आज तो बहुत खुश लग रहा है और लेकिन पॉकेट क्यों पकड़ के रखा है? डू यू नो हाउ वी होल सिल्वर रुपीज? तुझे पता है सिल्वर रुपी का भार कितना होता है? ₹1 का भार कितना होता है? बच्चे ऐसे ऐसे बातें करते हैं क्योंकि पहली बार रुपया हाथ में आया है और वो पूरा उससे कुछ जो भी खरीदना है खरीद सकता है। वाई द पॉकेट में गेट टॉर्न इफ आई डोंट होल्ड इट विथ वन हैंड आई स्पेंड। अरे भाई पकड़ूंगा नहीं ना तो मेरा पॉकेट टूट जाएगा, इतना भारी है। सो ही इज रियली वेरी हैप्पी and he is eager to buy what he wants. Sadhu's eyes became so big that almost fell out. बाबू आश्चर्यचकित हो गया। Sadhu's eyes became so big they almost fell out. Oh, a whole silver rupee? Did you say? तू ये कह रहा है कि ₹1 है? पूरा रुपया, silver coin, silver rupee. Did your mother send you to buy some medicines? हुई सनवेल, तो पहले भेज दे, तो यही होगा तुझे दवाई लेने के लिए भेजा है? कोई बीमार है? अरे भाई बीमार कुछ नहीं यार, मेरे पिताजी ने मुझे जो भी खाना है, जो भी लेना है वो लेने के लिए दिए। और तू पूछ रहा है बीमार है यार, कैसी बातें कर रहा है? नॉनसेंस, माय फादर गेव इट। गांडा, मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने मुझे दिया है। आई कैन डू वॉट आई लाइक विथ इट। मुझे जो भी खरीदना है वो कर सकता हूँ, मुझे जो भी लेना है वो ले सकता हूँ, ये रुपया मेरा है। आई थिंक आई हैव द फाइनेस्ट फादर अ बॉय कैन हैव। और मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में सबसे अच्छे पिताजी मेरे हैं। और है ना, क्योंकि इतने उस जमाने में जो ₹20 सैलरी थी, जो अर्निंग थी, उसमें से एक दिन में ₹1 देना बहुत बड़ी बात है। सो आई थिंक आई हैव द नाइसेस्ट फादर अ बॉय कैन हैव। आई सेड प्राउडली, प्राउड के साथ, मेरे पिताजी है ना सबसे अच्छे हैं। आई पुल्ड द रुपी आउट ऑफ माई पॉकेट सो क्विकली दैट, और बाद में देखो ऐसे निकालने गया तो हाथ में से गिर जाता है। आई पुल्ड द रुपी आउट ऑफ पॉकेट so quickly that it slipped out of my hand. तो ऐसे निकालने गया तो मेरे हाथ में से गिर गया। I pulled the rupee out of my pocket so quickly that it slipped out of my hand, fell on the pavement and went rolling towards the train. हाथ में से गिर के बाद रोल होता होता ट्रेन की तरफ चला गया। If Sadhu had not pounced on it, अगर साधु ने उसे रोका नहीं होता तो I would have lost my big silver rupee right there. और बेटा साधु ने उसे पकड़ लिया, वरना मेरा रुपया तो गया था, समझ लो, क्योंकि ट्रेन में चला जाता, बाद में कैसे निकालेंगे। लेकिन जो अच्छे दोस्त ऐसे काम आते हैं। मैं तो यार डर गया, अरे गया, लेकिन फिर भी मेरे दोस्त ने उसे बचा लिया, पैसे जो रुपया था उसको उसने रोक लिया। You fool, he cried. Don't you know thieves roam around the streets looking for things to steal? और साधु ने मुझे बोला तू पागल है यार, पता नहीं है कि आजकल जो बहुत सारे जो
जो चोर है, लुटारे हैं, वो घूम रहे हैं, थीव्स है वो घूम रहे हैं. यू फूल, ही क्राइड. डोंट यू नो, तुझे पता नहीं, थीव्स रोम मतलब घूमना, अराउंड द स्ट्रीट्स लुकिंग फॉर थिंग्स टू स्टील. तुझे पता नहीं है चोरने के लिए जो चोर है वो यहाँ पे घूमते रहते हैं, पता नहीं है. दैट स्कैर्ड मी, मैं डर गया, मैं डर गया. स्कैर्ड मी, आई हैस्टिली पुट इट बैक. और तुरंत ही मैंने मेरा रुपया है फिर से पॉकेट में रख दिया. टू माई पॉकेट. When someone caught hold of me by my shoulder, I almost screamed. और जब कोई मेरा शोल्डर से पकड़, मैं चिल्ला, hey, क्या है? So when someone caught hold by my shoulder, I almost screamed, but he was only our neighbor. लेकिन वो हमारे नेबर हुआ करते थे, नेबर थे. Aren't you the son of Gopal Rao? The lawyer asked. और उसने पूछा, क्या तू गोपाल राव का बेटा है? Aren't you son of Gopal Rao? The lawyer asked. Yes, I replied, ashamed. मैं शर्मा तो हाँ मैं गोपाल राव का बेटा हूँ. Why are you playing with money? बेटा ये रुपये के साथ क्यों खेल रहा है? Don't you know good boys are not supposed to do that? बेटा आपको पता नहीं है कि अच्छे बच्चे हैं ये रुपये के साथ खेलते नहीं है. जो लॉयर है वहाँ पे उसने ऐसे हाथ रखा तो डर गया. वो पूछ रहे हैं, बेटा अच्छे बच्चे इससे खेलते नहीं है. डू यू नो? एंड हाउ इज इट यू हैव अ होल न्यू रूपी, सिल्वर रूपी. और बेटा ये रुपया आपके पास आया कहाँ से? तो देखो, ऑब्स्टेकल्स आर देयर. गॉट इजीली. बिग ऑब्स्टेकल वाज दैट मदर. देन इट वाज about to go into train. Then this lawyer is asking the question. That is what is called, that is interrogation is being there. This picture you can see. Sadhu said the coin, the rupee. I was quite scared. मैं डर गया, अब क्या होगा? When he asked me all those questions. जो लॉयर ने, जो हमारे नेबर थे, उसने मुझे क्वेश्चन पूछा तो मैं डर गया. I was quite scared when he asked me all those questions. But I gathered my courage. लेकिन मैंने हिम्मत के साथ, करेज के साथ, करेज इकट्ठी की और बोला, My father gave me the rupee. मेरे पिताजी ने मुझे रुपया दिया है. You can ask him if you like, I said. मेरे पिताजी ने मुझे दिया है, अगर पूछना है तो पूछ लेना. यह टिपिकल बच्ची की टोन है, बच्चे के वर्ड्स है. माय बापा भी दीदा, पूछ ही ले जाओ. दैट इज मेरे पिताजी ने दिए. माय फादर गेव मी द रूपी. इफ यू कैन आस्क हिम इफ यू लाइक. अगर उसको पूछना है तो पूछ सकते हैं. और ऑनेस्टली आंसर दिया. आई सेड इन रिप्लाई, आई विल सर्टेन डू दैट. ही सेड, पूछूंगा मैं तेरे पिताजी को. एंड आई विल ऑल्सो टेल हिम इट इज गुड टू गिव सो मच मनी टू स्मॉल बॉयज. सो मैं तेरे पिताजी को भी बोलूँगा कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे को इतना देना अच्छी बात नहीं है. ये अच्छी बात नहीं है कि पूरा रुपया किसी मतलब छोटे बच्चे को दे देना. आई फेल्ट रिलीव्ड व्हेन ही वेंट अवे. जब वो मुझसे दूर चले गए तब मुझे थोड़ी सी राहत हुई. अच्छा हो भगवान, बच गए. आई फेल्ट रिलीव्ड व्हेन ही वेंट अवे, बट व्हाट वुड माय मदर do to me when she heard about me playing with the rupee on the street? I didn't know. लेकिन जब मेरी माँ को पता चलेगा कि मैं स्ट्रीट में एक इतने बड़े रुपये के साथ, सिल्वर रुपये के साथ अगर मैं खेल रहा हूँ तो मैं तो गया, समझ लेना. आई फेल्ट रिलीव व्हेन ही वेंट अवे. देखो, प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम. चले गए और फिर से नई सोच आई, नया आइडिया आया. बट वॉट वुड माई मदर डू टू मी when she heard about me playing with the rupee on the street? I didn't know. क्या होगा? क्योंकि मेरी माँ है, थोड़ी डेंजर है. Even Sadhu was worried. Sadhu was worried. Gangadhar, I am sure he will go and tell my father. गंगाधर ये मेरे पिताजी को भी कहेगा तो मैं भी फंसूंगा. अब दोनों डर रहे हैं. देखो उस जमाने में कितने माँ बाप से डरते थे बच्चे. You can tell your father it was my fault, I said. मैंने कहा कोई बात नहीं, तू कह देना कि गंगाधर का फॉल्ट था, मेरा नहीं है. यू कैन टेल योर फादर इट वॉज
माई फॉल्ट आई सेड, दैट विल नॉट हेल्प, सही साधु कामली, साधु ने शांति से कहा, भाई वो नहीं चलेगा यार, मेरे पिताजी ना थोड़े डेंजर है. व्हाट शैल वी डू देन, आई आस्क्ड हिम, तो हम क्या करेंगे यार, क्या कर सकते हैं. देन, well, I am going to be scolded at home anyway, so I might as well join you in eating all the snakes and sweets a rupee can buy, said साधु. साधु ने बोला जो हो जाए, जो होना होगा हो, तो ऐसे भी मार खानी, ऐसे भी जो होना है हो, चलो मैं तेरे साथ ही हूँ. Well, I am going to be scolded at home anyway, घर पे तो अब डांट खानी पड़ेगी, so I might as well join you in eating all snacks, तो तू जो भी नाश्ता करेगा मैं तेरे साथ खाऊंगा, स्वीट्स खाऊंगा. रुपी कैन बाय, 1 रुपये से जितना भी आएगा, सही साधु. आई कैन सी सम chewy sweets in the grocer's shop across the street. तो अक्रॉस स्ट्रीट एक जो है ना चेवी स्वीट्स है, वहाँ पे जाके दोनों खरीदते हैं. अब तो जो भी हो जाए देखा जाएगा, का बंदा जेल में, का बंदा मेल में, चलो जो भी होगा देखेंगे. लेट्स गो बाय सम. मैंने बोला चलो 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 जाते हैं. वॉट इफ ही टेक्स द रूपी एंड डजंट रिटर्न द चेंज, वॉट इफ ही सेज वी नेवर गेव हिम a rupee, साधु एडेड. लेकिन डर लगती है, खरीदने जाएंगे और बोलेगा तो कि भाई तुमने पैसे ही नहीं दिए, तुमने रुपये ही नहीं दिए. वॉट इफ ही टैक्स द रूपी एंड डजंट रिटर्न चेंज, और हम पैसे रुपया देंगे और वापस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, जो चेंज जो हमारा बचता है वो नहीं देंगे तो क्या करेंगे. वॉट इफ ही सेज वी नेवर गेव हिम a rupee, साधु से अगर वो बोलेगा कि आपने तो रुपया दिया ही नहीं तो हमारा क्या, क्योंकि जब कभी कभार हमारे पास पैसे आते तो इतना डर लगता है, अब डर लग रहा है उसको. आई वॉज शॉक्ड बाय द ट्रिक पीपल कुड प्ले ऑन अदर्स. मैं शॉक्ड हो गया कि ऐसे लोग भी होते हैं, कैसे ट्रिक चीटिंग करते हैं दूसरों पे. आई वॉज शॉक्ड, आश्चर्यचकित हो गया, बाय ट्रिक्स पीपल कुड प्ले ऑन अदर्स. लोग ऐसे होते हैं दूसरे पे ऐसे ट्रिक्स खेलते हैं, मुझे तो डर लगता है, आश्चर्य होता है, दुख होता है. आई एडमायर्ड साधु बिकॉज हियर वॉज अ बॉय हु कुड आउटस्मार्ट ऑल द क्लेवर थीव्स. लेकिन मुझे अच्छा लगा, मैंने उसकी प्रशंसा की कि तू मेरे साथ है, जो चीटर्स हैं उसको तू हरा सकता है, उससे तू अपने आप को हमें बचा सकता है. आई एडमायर्ड साधु बिकॉज देयर वॉज अ बॉय हु कुड आउटस्मार्ट ऑल द क्लेवर थीव्स एंड क्राफ्टी ग्रोसर्स. जो क्राफ्टी ग्रोसर्स है वो चीटिंग करते हैं, जो दुकान वाले होते हैं. इन द वर्ल्ड आई वॉज ग्लैड ही वॉज अराउंड टू टेक गुड केयर ऑफ माई रूपी. और मैं बहुत ही खुश था कि वो मेरे साथ है. हाँ, तो देखो यहाँ पे एक अच्छा दोस्त है और दूसरे दोस्त की प्रशंसा करता है, और दूसरा दोस्त उसको कैसे हेल्प कर रहा है. ट्रू फ्रेंड्स आर देयर. रियली साधु, आई डोंट नो वॉट आई वुड हैव डन विदाउट यू. रियली साधु यार, वेरी थैंक यू वेरी मच यार. अगर तू मेरे साथ नहीं होता तो मैं क्या करता. विदाउट यू आई एम नथिंग. एंड दिस इज द ट्रू फ्रेंडशिप. In a simple story, the true friendship is being described here. Wonderful friend is Sadhu. He saved coin. Now he is saving him from being cheated by the cheaters and crafty the shopkeepers, grocers. So wonderful friendship is being described here. Really, Sadhu, I don't know what I would have done without you. I said to him, my eyes sparkling with admiration. और मेरी आंखें उसकी प्रशंसा से चमक उठी. आई नो वॉट वी कैन डू, आई सजेस्टेड. मैं जानता हूं हम क्या कर सकते. लेट्स गो टू नाना मेहंदाले शॉप एंड बाय स्वीट्स प्रॉमिस. देखो नाना मेहंदाले की शॉप है, वहाँ पे जाते हैं और कुछ खरीदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं. वाइल एट द शॉप नाना जी लुक्ड एट मी. जब दुकान पे गए तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम. While at the shop, Nanaji looked at me doubtfully and asked me several questions. भाई ये रुपया आया कहाँ से? क्वेश्चन होते हैं. छोटा बच्चा है 2000 लेके अगर कहीं पे भजिया खाने जाता है 5 6 7 साल का या
पानी पूरी का तो प्रश्न क्वेश्चन होते हैं. सो वाइल एट द शॉप नानाजी लुक्ड एट मी डाउटफुली एंड आस्क्ड मी सेवरल क्वेश्चंस बिफोर वी कुड गो एल्सवेयर. आफ्टर लीविंग द शॉप आई सेड, साधु, आई थिंक आई विल गो होम एंड हैंड ओवर द चेंज टू माई मदर. और बाद में नाश्ता करने के बाद ये बोल रहा है कि मैं मेरी मम्मी है उसको ये चेंज दे दूंगी. वाइल एट द शॉप नानाजी लुक्ड एट मी डाउटफुली एंड आस्क्ड सेवरल क्वेश्चंस बिफोर वी कुड गो एल्सवेयर. आफ्टर लिविंग द शॉप आई सेड, साधु, आई थिंक आई विल गो होम एंड हैंड ओवर द चेंज टू माई मदर. साधु thumbed me. Well done. Thumbed me. Sadhu thumbed me. On my back and said, you cry baby, you haven't chewed a single sweet so far. अरे यार तूने एक भी स्वीट तो खाई नहीं है. और तो अब देखो ये सब प्लान हो रहे हैं. Then I realized I was getting quite hungry. और मुझे लग रहा था मुझे भूख लग रही थी, मैं भूखा हो रहा था. And very thought of sweets made my mouth water. और तुरंत ही मुझे लगा कि वो सोचते मेरे मुंह में पानी आ गया. I realized I was getting quite hungry and the very thought of sweet made my mouth water. मैं बहुत ही भूखा हो रहा था और स्वीट का नाम याद आया तो मेरे मुंह में पानी आ गया. सो आई बॉट 2 पैसे वर्थ ऑफ च्यूवी स्वीट्स. तो मैंने स्वीट्स खरीदी 2 पैसे की, खाली 2 पैसे. 100 पैसे होते हैं ना रुपये में, उसमें से 2 पैसे की. वी ऑल्सो वेंट टू ईरानियन शॉप. बाद में मिठाई खा के ईरानियन शॉप पे गए. बाद में मैं ईरानियन शॉप पे गया. Iranian shop to buy chocolates which we enjoyed a lot. बाद में हमने ईरानियन शॉप पे चॉकलेट खरीदी और हमने बहुत एंजॉय किया. Then साधु bought 2 ice candies. बाद में साधु 2 आइस कैंडी dipped in 3 kinds of colored syrup. जो कलर के सिरप होते हैं ना सब ऊपर डालते हैं ना, वैसे dipped मतलब उसमें डुबो के. So then साधु bought 2 ice candies dipped in 3 kinds of colored syrup. When I reached home, I breathed sign of relief. जब मैं घर पहुंचा तो मैंने I breathed sign of relief and sank into a corner. And when I reached home, I breathed sign of relief and sank into a corner. In those days, we young boys had a pretty tough time, but we also had a lot of fun. तो उस जमाने में हमारे भी बहुत सारे फन थे. In those days, young boys had a pretty tough time. हमारे लिए टफ टाइम था फिर भी, but we had also lot of fun. So this is the story, wonderful story. 2 friends, and how really we are described in such a way that we can see the picture. His father gives him money, then having taken this he moves to and meets his friend. Then obstacle never ends here, and at last the happy ending is there. So this is the explanation of the chapter. We will see the textual exercises and question answers. Let's see the grammar. A. Say whether the words in the color are direct objects or indirect objects. तो हमने ऑब्जेक्ट सीखे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं और कैसे उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो ज़्यादातर जो इंसान होते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, थिंग्स होती हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. सो लता टीचिस अस साइंस. तो अस है मतलब हम लोग, प्रोनाउन, तो वो क्या हुआ, direct object, us. Then it has been given. Then my school has offered me a chocolate, a scholarship. तो जो स्कॉलरशिप है, तो बेटा ये यहाँ पे us है ना, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है.
साइंस है ना, व्हाट से क्वेश्चन करोगे ना तो आपको साइंस मिलेगा ना, हुम से क्वेश्चन करोगे तो अस मिलेगा। तो अस है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और साइंस है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। माई स्कूल हैज़ ऑफर्ड मी अ स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप है व्हाट से क्वेश्चन करो, व्हाट हैज़ द स्कूल ऑफर्ड मी, तो स्कॉलरशिप तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। एंड हुम से क्वेश्चन करो, हुम हैज़ माई स्कूल ऑफर्ड स्कॉलरशिप, तो मी, तो देखो मी यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो ऊपर का जो अस है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, वो गलत सेंटेंस है। जतिन ऑज हर 20 रुपीज, देखो हर यहाँ पे तो अस है, मी है, हर है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखो जतिन ऑन्स हर 20 रुपीज, हुम हर व्हाट 20 रुपीज, व्हाट से क्वेश्चन करोगे 20 रुपीज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हर है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी पास्ड मी अ सॉल्ट, तो ये भी गलत है। व्हाट डिड ही पास, तो सॉल्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दैट इज ऑल्सो, तो यहाँ पे वो गलत आंसर है। वो होता है सॉल्ट है वो थिंग है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखो कितनी गलतियां करते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो या पब्लिशर की गलती है वो गलती है। द प्रिंसिपल टोल्ड ऑल ऑफ अस अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द प्रिंसिपल टोल्ड अस अ वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाट से क्वेश्चन करो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, हुम से क्वेश्चन करो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, हुम अस, तो अस है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वेरी इंटरेस्टिंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देन शी गेव द वेटर 100 रुपी नोट, तो ये जो वेटर है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे शायद गलती हो या बाय मिस्टेक ये आंसर दिए हुए हैं। शी गेव द वेटर, तो वेटर है वो ह्यूमन बीइंग है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, 100 रुपीज नॉट। नाउ लेट्स सी बी, identify the direct and indirect objects in these sentences by writing do direct object above the direct object and io indirect object above the indirect object. Crowd cheered the batsman, that is direct object, indirect object, that is indirect object. By mistake it is written do direct object. Whom did, the batsman. The students elected Hamid, तो बेटा हमीद है, देखो whom did the student elect, तो हमीद, तो ऊपर भी whom है ना, whom did the crowd cheer, batsman, तो whom से क्वेश्चन करोगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट 100% मिलेगा। स्टूडेंट्स इलेक्टेड हमीद द स्कूल कैप्टन, व्हाट डिड, क्या इलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बराबर है, सही है। द पुलिस आर क्वेश्चनिंग द विटनेस, हुम डिड क्वेश्चनिंग, हुम आर द पुलिस क्वेश्चनिंग, विटनेस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बराबर है, ह्यूमन बीइंग, द विटनेस है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ज्यूरी गेव रमेश हुम, देखो यहां पे और ऊपर के उसमें देखो हुम रमेश इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट स्पेशल है वर्ड, समझ में है? तो बुक में नहीं जाना है, बुक में गलत है तो भी गलत बता देना, ये गलत है, 100% गलत है। हुम से क्वेश्चन करो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो व्हाट से क्वेश्चन करने से मिले, व्हाट से क्वेश्चन करोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, हुम से क्वेश्चन करोगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। द टीचर गेव हिम, हुम हिम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट डिड रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हुम हिम है ना, प्रोनाउन, ऊपर भी मी वास था वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा था, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ओके। तो टीचर गेव हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ लीडिंग द टीम। द कमिटी अवार्डेड अरुंधति रॉय, हुम अरुंधति रॉय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, विद द Booker Prize for the
god of small things. So that is Arundhati, human being, indirect object. Her uncle gifted her. Her uncle gifted her. Her whom? Her with a to her above indirect object. They gave me. Me whom? Me indirect object. What? Permission. Direct objects. So very easy. Direct indirect object because we have explained many times in many chapters. So this was all from the explanation. This was all from the explanation of chapter. Now this was all from the Big Silver Rupee, the chapter. It is a very interesting chapter for the kids. I hope and trust you will also enjoy the same as I have enjoyed it. Really a wonderful story. I liked it so much. I hope and trust you will try to read again and try to understand the story. Thank you very much.